Good morning, class. So, in our last two lecture, we are discuss about some morphological characteristic of bacteria. What is the which type of cell have a shape, arrangement, उसकी साइज क्या होती है, वो सब हमने अपने लास्ट टू लेक्चर में डिस्कस किया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में वी आर डिस्कसिंग एक्सटर्नल टू द सेल वॉल. दैट मीन्स लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम आउटसाइड. बैक्टीरिया के बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. तो सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल. This is the bacterial cell, how they look like. This is the flagellum, this is the pilus, this one is cytoplasm, this is DNA as a genetic material, the small granules is ribosomes, the outer layer is capsule, inside the capsule is cell wall, and inside the cell wall there is plasma membrane. First of all, we have to discuss bacterial structure from external to the cell wall. That means we have to discuss flagella, pili और pili. आप कुछ भी बोल सकते हैं. flagella, pili, capsule, sheath, prosthecae and stalk. So this is the outer structure of bacteria. Let's start with discussion of flagella. Flagella are appendages bacteria, long, slender, thin hair-like cytoplasmic, which are responsible for the motility of bacteria. Flagella appendage. Appendage का मतलब क्या होता है? बाहर का कोई ऑर्गेनेल्स जो बैक्टीरिया को दूसरी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करता है. The long, slender, thin hair-like cytoplasmic, which are responsible for the motility of bacteria. जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, प्लस थिन हेयर लाइक होता है, जो बाहर की साइड होता है सेल की. और वो उसका फंक्शन क्या होता है? तो मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है. These are the organs of locomotion. Locomotion means movement. The flagella is useful for the motility or movement of the organism. They are 0.01 to 0.02 micrometer in diameter. उसकी साइज कितनी होती है? 0.012 से 0.02 माइक्रोमीटर होती है और 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और उसकी लेंथ 3 to 20 माइक्रोमीटर होती है. फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन. जो फ्लैजिला होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन. द फ्लैजिलम हैज़ 3 बेसिक पार्ट. जो फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिला डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं फिलामेंट. From the filament, second one is hook, and the last is basal body. So this is the structure of flagella. This part, hook and the filament, are outside the cell, and the basal body are part of inside the cell. The filament is thin, cylindrical, long outmost region with a constant diameter. जो फिलामेंट होता है, ये वाला जो लाइट पिंक कलर का दिख रहा है हमें, वो फिलामेंट है और वो थिन सिलिंड्रिकल उसका शेप है. आउटर मोस्ट रीजन है जिसकी डायमीटर कांस्टेंट होती है. The filament is attached to silently wider hook, and these filaments are attached with the hook, and the diameter of hook is higher as compared to the filament. That means the filament is attached with the hook.
The basal body is composed of small central rod inserted into the series of ring. Now the third part was basal body. This one is filament pink, dark pink is hook, and this one is central rod is our basal body. This basal body is inserted into the cell from outer membrane to the cytoplasmic membrane. If you can see, this is the 4 rings are present here. So the basal body is passed through this 4 rings, and the name of ring: L ring, P ring, S ring and M ring. L ring for lipopolysaccharide, P ring for peptidoglycan, S ring for the synthesis and M ring for the cytoplasmic membrane. These 4 rings are present in bacteria, but not all type of bacteria. Some bacteria have a few rings and other have some another type of ring. The gram-negative bacteria contain 4 rings: L ring, P ring, S ring and M ring. The gram-negative bacteria are contain for all 4 type of ring, where the gram-positive bacteria have only S and M ring in the basal body, but gram-positive bacteria have only 2 type of ring: S ring and M ring. Gram-positive bacteria have not L or P ring. They have only 2 type of S and M ring. So this is the structure of flagella. There are 3 parts: filament, hook and basal body. Filament is outermost part of the flagella and they have a constant diameter, and the second one is hook. Hook have some wider diameter as compared to filament, and the hook are attached to the basal body. This is the central rod pass from this 4 type of ring. This is the gram-negative bacteria. If there is gram-positive bacteria, then only S and M type of ring is present. This is the outer membrane, that means outer surface of the cell, and this orange color is peptidoglycan layer, and inner side of peptidoglycan there is cytoplasmic membrane. So our basal body is inserted into the cytoplasmic membrane. The flagella may be seen on bacterial body in following manner. Some bacteria have a single flagella, but other bacteria have more than 1 or 2 flagella. According to the number of flagella, the organism can be divided in some 4 type of group. First one is monotrichous. Monotrichous, mono का मतलब क्या होता है? सिंगल. This bacteria have single polar flagellum. That means the bacteria those have a single flagella. It's called monotrichous. The example of monotrichous is Vibrio cholera. The second one is Lophotrichus. These bacteria have 2 or more flagella only at one end of the cell. You can see this is the Lophotrichus. They have 2 or more flagella, but only one side, not both the polar, only single polar. They have 2 or more flagella. Example of Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas fluorescens organism have 2 or more flagella at one side. The third one is Amphitrichus. These bacteria have a single polar flagella or stuff of flagella at the both pole. Amphitrichus organism होते हैं, उसमें जो फ्लैजिला होता है वो दोनों साइड होता है, अपर और लोअर, बोथ पोलर साइड. सॉरी, ओनली सिंगल पोलर साइड होता है, और स्टफ फ्लैजिला एट द बोथ पोल. जो वो सिंगल है तो ओनली सिंगल साइड होगा, लेकिन वो स्टफ में है, डेट मीन्स वो गुच्छे में है, यानी कि वो एक से ज़्यादा है, तो वो दोनों साइड में हमें दिखने को मिलते हैं. थर्ड वन है पेरिट्राइकस. द सेवरल फ्लैजिला प्रेजेंट एट ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. जो
फोर्थ वन है पेरिट्राइकस, उसमें जो फ्लैजिला होता है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक। जो पेरिट्राइकस होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की सारी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, उसके अपर साइड में, लोअर साइड में और लेफ्ट राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स जो बैक्टीरियल सेल होता है वो पूरा फ्लैजिला से ढका हुआ होता है। और एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एम्फीट्राइकस में जो फ्लैजिला होता है वो बोथ साइड प्रेजेंट होता है, अपर साइड और लोअर साइड। और पेरिट्राइकस में ऑल ओवर द सरफेस फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पेरिट्राइकस का एग्जाम्पल क्या है, इकोला एंड साल्मोनेला टाइफी। और जो एम्फीट्राइकस है उसका एग्जाम्पल क्या है, एक्वास्पिरिलम सर्पेंस। तो ये उसके एग्जाम्पल है। डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इफ देर इज सिंगल फ्लैजिला ओनली वन साइड it is monotrichous. If the more than 2 flagella at one side is called lophotrichous. If the both sides are present, then it is called amphitrichous, and all over the surface, then it is called peritrichous. जो फ्लैजिला होता है उसकी मोटिलिटी कैसे होते हैं, डेट मीन्स वो मूवमेंट कैसे होता है। तो जो फ्लैजिला होता है सेल, वो सेल क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है और उसका जो फ्लैजिला होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। डेट मीन्स फ्लैजिला और बैक्टीरियल सेल बोथ कैन मूव अपोजिट डायरेक्शन। फॉर दिस रीजन द बैक्टीरियल कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। The second organs है पिलाई और फिम्ब्रिया। The पिलाई are hair-like microfibrils 0.5 to 2 micrometer in length and 5 to 7 nanometer in diameter। उसकी लेंथ कितनी होगी, 0.52 से लेके 2 माइक्रोमीटर, और उसकी जो डायामीटर है वो 5 to 7 नैनोमीटर होगी। They are thinner, shorter and more numerous than the फ्लैजिला। जो पिलाई होता है उसकी लेंथ वो शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू फ्लैजिला, और जो फ्लैजिला होता है उसकी कंपेयर में जो पिलाई होता है उसका नंबर ज़्यादा होता है। They are present only on gram negative cell. That means pili are present only gram negative cell. Gram positive cell have not pili. They are composed of protein known as pilin. जो पिलाई होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन को क्या कहते हैं, पिलिन। पिलिन प्रोटीन से बना होता है। They are unrelated to motility and are found on motile and non-motile cell. जो पिलाई होता है वो it is not responsible for the motility. That means both type of cell, motile or non-motile, both cell have a pili. Fimbria and pili, these two terms are used interchangeably but they can be distinguished. जो पिलाई और फिम्ब्रिया होता है वो दोनों एक ही है, लेकिन उस दोनों में डिफरेंस है। The fimbria can be evenly distributed over the entire surface of the cell, or they occur at the pole of the bacterial cell. Each bacteria possesses 100 to 200 fimbria. जो फिम्ब्रिया होता है वो सेल की ऑल ओवर सरफेस में स्प्रेड हुआ होता है, और जो पिलिया होता है और जो ईच बैक्टीरिया पोसेस 100 to 200 फिम्ब्रिया। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास 100 से लेके 200 फिम्ब्रिया होता है। पिलिया आर यूजुअली लॉन्गर देन द फिम्ब्रिया एंड नंबर ओनली 1 or 2 पर सेल। जो पिलिया होती है उसकी लेंथ फिम्ब्रिया से ज़्यादा होती है, और उसका जो नंबर होता है वो 1 या 2 पर सेल ही होगा। और उसका फंक्शन क्या है, play important role in attachment to the surface. The pilia is also called organ of adhesion. जो पिलाई होता है वो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट होने में हेल्प करता है,
और उसे हम एडेशन ऑर्गन्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो कोई भी दूसरी सरफेस है उसके साथ अटैचमेंट होने में हेल्प करेगा, उसके साथ बैक्टीरियल सेल को जोड़ के रखेगा। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिलाई है और ये फ्लैजिला है, दोनों में कितना डिफरेंस है। जो फ्लैजिला होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है प्लस उसका नंबर ऑफ फ्लैजिला कम होता है एज कम्पेयर टू द पिलाई। पिलाई होता है उसकी लेंथ कम होती है और उसके नंबर ज़्यादा होता है, प्लस दोनों का जो फंक्शन है वो भी डिफरेंस है। फ्लैजिलम is used for the motility and pili is used for the attachment to the surface. Pili is not related for the motility. The special movement in the bacteria. Some bacteria have a specific type of movement, for example chemotaxis. With the help of flagella, bacterial cell can swim toward or away from a chemical stimulus is known as bacterial chemotaxis. Some type of bacteria have a chemical sensitivity. If the concentration of that particular chemical is increased, that means the bacterial cell are attract or repel toward the chemical. With the help of flagella, bacterial cell can swim toward or away. जो स्पेसिफिक केमिकल होता है, सम बैक्टीरिया उस केमिकल से अट्रैक्ट होते हैं या फिर उससे रिपल्ट होते हैं, तो उस केमिकल को हम केमोटैक्सिस कहते हैं। जो उस प्रोसेस होती है उसे हम केमोटैक्सिस प्रोसेस और उस बैक्टीरिया को केमोटैक्सिस बैक्टीरिया कहते हैं। द स्विमिंग टूवर्ड अ केमिकल इज कॉल्ड द पॉजिटिव केमोटैक्सिस। यदि कोई बैक्टीरिया केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम उसे पॉजिटिव केमोटैक्सिस कहते हैं एंड द केमिकल इज कॉल्ड अट्रैक्टेंट, और उस केमिकल को हम बोलेंगे अट्रैक्टेंट। इफ द स्विमिंग अवे फ्रॉम अ केमिकल इज कॉल्ड द नेगेटिव केमोटैक्सिस। यदि कोई बैक्टीरिया कोई केमिकल से दूर जाता है तो इसे हम नेगेटिव केमोटैक्सिस कहेंगे, और वो केमिकल होता है उसे हम रिपल्ट कहते हैं, रिपल्ट। द ग्रेडियंट आर सेंस्ड बाय द प्रोटीन केमोरिसेप्टर लोकेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट अट्रैक्शन एंड रिपल्टेंस। जो बैक्टीरिया होता है, जो केमोटैक्सिस बैक्टीरिया है, उसकी सरफेस पे केमोरिसेप्टर प्रेजेंट होता है, केमोरिसेप्टर प्रोटीन। जब किसी केमिकल का ग्रेडियंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई और लो है और बैक्टीरिया उस केमिकल से अट्रैक्ट और रिपल्ट होते हैं, तो वो केमिकल उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद बैक्टीरिया को सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे इस केमिकल प्रेजेंट है, और उसके बाद बैक्टीरिया रिस्पॉन्स करेगा। यदि वो केमिकल उसको अट्रैक्ट करता है तो वो बैक्टीरिया उस केमिकल की टूवर्ड मूवमेंट करेगा, और वो बैक्टीरिया केमिकल से दूर जाता है तो वो उससे अवे मूवमेंट करेगा। दैट मीन्स जो केमोरिसेप्टर है बैक्टीरियल की सरफेस पे, वहाँ पे केमिकल आके बाइंड होगा, और वो केमिकल बाइंड होने के बाद बैक्टीरिया को सिग्नल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरियल सेल है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। द केमोरिसेप्टर हेल्प बैक्टीरिया टू कंपेयर इट्स एनवायरनमेंट। जो केमोरिसेप्टर होता है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि उसके आसपास जो केमिकल प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया होता है वो एडजस्ट होता है, उसका एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया सेटल होगा। तो जो केमोरिसेप्टर है वो बैक्टीरिया को अपने और उसके आसपास के एनवायरमेंट से कंपेयर करने में हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया ऑल्सो हैव फोटोटैक्सिस एंड मैग्नेटोटैक्सिस। जो बैक्टीरिया के पास केमोटैक्सिस होते हैं वैसे ही सम बैक्टीरिया हैव अ फोटोटैक्सिस एंड मैग्नेटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस में क्या होता है,
some bacteria are responsible to difference in the light intensity. The phenomena is called phototaxis. कुछ बैक्टीरिया होता है जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उससे सेंसिटिव होते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम फोटोटैक्सिस कहेंगे। और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैग्नेटोटैक्सिस होते हैं। डेट मीन्स हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देंगे। जो बैक्टीरिया मैग्नेटोटैक्सिस है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा होगी अर्थ की उसी डायरेक्शन में, डेट मीन्स वहाँ पे ही हमको देखने को मिलेंगे। और जो मैग्नेटोटैक्सिस बैक्टीरिया है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रकार की ऑर्गेनिल्स होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटोजोम्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के पास अट्रैक्शन होने में हेल्प करता है। सेकंड ऑर्गेनिल्स है वो है कैप्सूल। द मैनी बैक्टीरियल स्पीसीज आर सराउंडेड बाय द विस्कस सब्सटेंस एक्यूमुलेशन ऑफ जिलेटिनियस मटेरियल ऑन सेल वॉल नोन एज कैप्सूल। जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम बाहर से देखें तो उसकी जो सरफेस होती है वो हमें एक जिलेटिनियस मटेरियल के जैसे लगती है, थोड़ी सी स्टिकी होती है प्लस स्मूथ सरफेस होती है। तो बैक्टीरियल द्वारा जो कहीं विस्कस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो सेल के बाहर एक्यूमुलेट होता है और उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल इज गवर्न्ड बाय द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो कैप्सूल प्रोडक्शन होता है उस पर उसका जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करता है। उसके पास कैप्सूल बनाने का जीन है तभी वो बैक्टीरिया कैप्सूल बना पाएगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर उसके आसपास कोई ऐसा एंजाइम है जो कैप्सूल को डिग्रेड कर देगा तो बैक्टीरियल सेल है वो कैप्सूल नहीं बना पाएगा। अगर बनाएगा फिर भी जो कैप्सूल डिग्रेडिंग एंजाइम है उसे डिग्रेड कर देगा, इसलिए वो उसके आसपास जो कैप्सूल डिग्रेडिंग एंजाइम है तो वो कैप्सूल नहीं बनाएगा। प्लस उसके पास ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है, उसे ग्रोथ फैक्टर, जो ग्रोथ फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो उसके ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर प्रेजेंट है। जो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं तो वो कैप्सूल बना देगा ऑर्गेनिज्म, बट वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया है वो कैप्सूल नहीं बना पाएगा। Sometimes the capsular material is loosely associated with the bacterium. It can be easily washed away. Sometimes क्या होता है जो बैक्टीरियल कैप्सूल है वो बैक्टीरियल के साथ टाइटली अटैच नहीं होता है, उसकी वजह से जब भी बैक्टीरियल सेल पर म्यूकस का फ्लो होता है या फिर और कोई भी केमिकल हम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है वो रिमूव हो जाता है क्योंकि वो टाइटली अटैच नहीं है। द लोस्ट लेयर इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर, और उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रोड्यूस रफ कॉलोनी ऑन द surface of agar media. If we grow the capsulated bacteria on agar media and after the incubation we can see the capsulated bacteria produce smooth colony because of the capsule. The capsule we are discussed, the capsule have a gelatinous material. Because of this gelatinous materials, capsulated bacteria give smooth colony, and the non-capsulated bacteria produce rough colony because they don't have a capsule, so they cannot produce smooth colony. जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसमें कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डाइंग। जो कैप्सूल होती है वो वेट होती है, जेलेटिनियस मटेरियल, डेट मीन्स वो थोड़ी सी वेट होगी, उसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो ड्राई नहीं होता। दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट द एंटी बैक्टीरियल एजेंट फाजिस एंड द फेगोसाइटोसिस।
The capsulated bacteria have no effect of antibacterial agent because कोई भी एंटीबायोटिक है या एंटीबैक्टीरियल एजेंट है उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके साथ बैंड होना पड़ता है। लेकिन जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है, बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल एंड दिस कैप्सूल हैव अ विस्कस मटेरियल, तो उस विस्कस मटेरियल की वजह से जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है उसके साथ बाइंड नहीं हो पाता है और उसकी वजह से वो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। प्लस फाजिस जो बैक्टीरियोफाज होते हैं उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, बैक्टीरियोफाज फर्स्ट कम एंड अटैच टू द surface, but when the bacteriophage come and attach to the capsulated bacterial surface, they cannot make attachment with that capsule because the capsule have a gelatinous and viscous material, so bacteriophage cannot bind with capsule. So if bacteriophage not bind, then the bacteria are not killed by बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है, तो वायरस डेट किल्ड बैक्टीरिया, इसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफाज। एंड द फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो फेगोसाइटिक सेल होता है, फेगोसाइटिक सेल जब कोई भी पार्टिकल उसके आसपास आता है तो वो अपने बॉडी का पार्ट एक्सटेंड करता है और जो भी मटीरियल है उसे इंगल्फ कर लेता है और इंगल्फ करने के बाद अपनी बॉडी के जो एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम उसके साथ फ्यूज़ करके उसे किल कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। But the bacteria have a capsule that cannot engulf by the phagocytic cell because the capsule is viscous and that cannot attach by the phagocytic cells. So the capsulated bacteria get protection against the phagocytic cell, phage and the antibacterial agent. Help in attachment of the bacteria to the various surface. जो कैप्सूल होती है वो स्टिकी होती है, तो इसलिए वो कोई भी सरफेस के साथ इजीली बाइंड हो सकती है। इसका मतलब जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है वो किसी भी सरफेस के साथ इजीली बाइंड हो सकते हैं एज कंपेयर टू द नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। वो किसी भी सरफेस के साथ बाइंड हो सकते हैं, उसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव हो सकते हैं। यूज इन द स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस एंड स्टोरेज साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो कैप्सूल होती है उसका वो फूड स्टोरेज में भी यूज़ कर सकते हैं और जो बॉडी का वेस्ट होता है वो भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। Now second organelle is sheath. The bacteria found in fresh and marine environment from chain that are enclosed by the hollow tube called the trichome. ट्राइकोम का मतलब क्या होता है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम ट्राइकोम कहते हैं। तो शीथ क्या होता है, तो बैक्टीरिया that are found in fresh or marine water, they have a particular type of enclosed hollow tube type of structure and that the cell are present in this enclosed tube type of structure और इसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं। और ट्राइकोम का मीनिंग होता है टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो रोड शेप सेल दिखाई दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल सेल। तो जो शीथ होती है उसके अंदर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं और शीथ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, चेन में होगी और इनक्लोज बाय द होलो ट्यूब, वो ट्यूब के अंदर होगी, ट्यूब टाइप उसका स्ट्रक्चर होगा, अंदर से होलो होगी, डेट मीन्स अंदर से
खाली होगी उसके अंदर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होगा. इफ वी सी sheath in a microscope we cannot find any clear image, but when some cells are lost from it, जब शीत में से थोड़े से सेल रिमूव हो जाएंगे तब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल अभी प्रेजेंट है, तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ बैक्टीरियल सेल आर रिमूव फ्रॉम दिस शीथ, सो वी कैन इजीली विजुअलाइज द sheath structure. Sometimes sheath may become impregnated with the ferric or manganese hydroxide. Sometimes bacteria present in the environment where the ferric or manganese are present, then the sheath are accumulated ferric and manganese hydroxide in it. This ferric and manganese hydroxide provide the strength of this sheath. So sheath is become more strong in the presence of ferric and magnesium hydroxide. So this is all about sheath. Now the second one is prostecae and the stalk. The prosteca are semi-ring extension of cell wall and cytoplasmic membrane having a diameter less than that the cell. जो प्रोस्टेका होता है वो क्या होता है, तो होता है जो सेल होता है उस सेल की सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी खिंच जाती है, एक्सटेंस हो जाती है, और उसमें से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे प्रोस्टेका. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये हमारा सेल है और सेल के ऊपर जो सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटेंस हो गई है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोस्टिका. और उसका डायमीटर जो सेल होता है ओरिजिनल सेल उससे थोड़ा कम होता है. इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रिएंट. जो प्रोस्टिका बन जाता है उससे क्या होगा, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. और इसको ये हेल्प कहाँ पे होगा, डाइल्यूट, जहाँ पे न्यूट्रिएंट डाइल्यूट है, डेट मीन्स उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट लो है. तो न्यूट्रिएंट कंटेंट लो है, यहाँ पे सरफेस एरिया हाई है, तो सरफेस एरिया हाई होने की वजह से इजीली वो अपने आसपास के जो डाइल्यूट न्यूट्रिएंट होते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. Some bacteria form new cell at the end of the prostica. जब सेल का डिवीजन होगा तो some type of bacteria form new cell on the top of this prostica, while some have adhesive substance at the end of the prostica. Some bacteria have adhesive material on the top of prostica that help to attach of the any other surface. The Chylobacter have a single prostica and the Ankylomicrobium have a many. This is the example of two bacteria that have a different number of prostica. Now the next one is stalk. The stalk is mistaken of the prostica or hypha but is non-living ribbon-like or tubular appendage excreted by the cell of genera Gallinola or the Plantomyces. जो स्टॉक होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम बोलेंगे स्टॉक. वो नॉन लिविंग होता है और बैक्टीरिया को दूसरे सरफेस के साथ अटैचमेंट होने में हेल्प करता है. और यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फ्लैजिला. So this is all about the structure external to the cell wall. In our next lecture we will discuss about cell wall. What is the cell wall, composition of cell wall, function of cell wall. So this is all about external to the cell wall. Thank you so much.